بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یقین جانیے اگر میں یہاں سے شروع کروں، اگر میں یہ بات یہاں سے بتانا شروع کروں تو ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ بات برداشت ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ چڑھیلا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کہتے حذیفہ تم پڑھا لو۔ اگر میں یہاں سے شروع کروں، جو دھوکہ دیتا وہ دین میں سے نکل جاتا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ سوچو ہمارے ایمان میں نا اتنی طاقت نہیں ہے۔ میری باتوں پہ غور کرو، پوری بات سنے بغیر کوئی نتیجہ نہ نکالو۔ اللہ کے واسطے اینڈ تک دیکھو اس کو۔ علیکم بالصدقی، ہمیشہ سچ بات کہو۔ ہمارے دن جھوٹ سے شروع ہو کے جھوٹ پہ ختم ہوتے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، ہمارے ایمان میں نا اتنی طاقت نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ مطلب معاشرے میں سدھار لانا ہے۔ یہ بات اگر میں کروں تو ایسی حالت ہو جائیں گی کہ آگے بڑھا دو یہ ویڈیو کو، ناممکن ہے، امپاسبل۔ میں اکیلی سب کی ذمہ داری کیسے لوں؟ میں اکیلا یا میں اکیلی، ایک عورت اکیلی، ایک مرد کیسے لے سکتے اس کی ذمہ داری؟ ہم کو سب کی ذمہ داری نہیں لینی ہے، ہم کو سب کی ذمہ داری نہیں لینی ہے۔ اگر فرض کر لو مثال کے طور پہ معاشرے میں 200 لوگ ہیں تو پورے 200 لوگوں کی ذمہ داری ہم کو نہیں لینی ہے۔ جس نے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہے، یہ کلمہ پڑھ لیا، گویا اس نے اپنا ذمہ خود لے لیا۔ یہ جو پورے کے پورے 200 لوگ ہیں، انہوں نے سب نے اپنا اپنا ذمہ لیا ہوا ہے۔ معاشرے کے پورے لوگوں نے سب نے اپنا اپنا ذمہ خود لیا ہے، کلمہ پڑھ کے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے، بھلائی کو پھیلانے کا اور برائی کو روکنے کا۔ بات کو سمجھو، یہ جو اتنی حد سے زیادہ بدتر حالت ہو گئی نا ہمارے معاشرے کی، یہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرنے کو تیار ہے نا، اس وجہ سے ہو گئی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اس میں سدھار لانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے کے زمانے میں 100 اچھوں میں ایک برا پہچانے جاتا تھا، 100 سچوں کے اندر، 100 سچے لوگوں کے اندر ایک جھوٹا پہچانے جاتا تھا۔ ابھی کے زمانے میں 100 جھوٹے کے اندر ایک سچا پہچانے جاتا۔ اللہ معاف کرے، بات کو سمجھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ حالت ہو گئی، ہمارے دن شروع جھوٹ سے ہوتے اور ہمارے رات تک جھوٹ۔ اللہ معاف کرے، یہ حالت ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایسی کوئی بھلائی باقی رہی نہیں جو نہیں بتا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرات سے لے کے، اخلاق سے لے کے، پھر سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ غور کرو، حد سے زیادہ دکھاوا کیوں ہے؟ حد سے زیادہ بے شرمی بے حیائی کیوں ہے؟ حد سے زیادہ ناانصافی کیوں ہے؟ کیوں غیروں کے طریقہ کیوں اپنا رہے ہم؟ کہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے اصول کا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔
चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे दीमक खाती है लकड़ी को। माफ़ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दे? समझिए अच्छी तरह से इस बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर माफ़ कर देने से तुम्हारे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर माफ़ कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी कोताही होते होंगी तो कल क़यामत के दिन आकर मुझसे ले लेना। बात को समझो। ये सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हैं और ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। ये सब अगर माशरत के अंदर ये लाया जाए, मामलात में लाया जाए, माशरत में लाया जाए तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते गौर करो, इस बात में गौर करो। हमारे घरों में कुरान बंद पड़े ले। आज कौन सा मुसलमान का ऐसा घर नहीं जिसके अंदर कुरान नहीं है? कुरान का सबसे पहला हक़ ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। गौर करो। मैं बार बार यह आयत दोहराती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाता है कि और उस दिन हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बयान करेंगे और उनके पाँव हमसे बयान करेंगे और उनकी आँखें बयान करेंगी और जिस्म का जो चमड़ा रहता वो भी बयान करेगा। ये आयत सूरह सजदा की है। यहाँ तक कि जिस्म का चमड़ा तक बयान करेगा और हमारे खिलाफ बयान करेगा कि या अल्लाह ताला, ये जो तेरी नेमतें थी इंसान के पास, इसने उनका गलत इस्तेमाल करा, हाथ का गलत इस्तेमाल करा, पाँव का गलत इस्तेमाल करा, कान का गलत इस्तेमाल करा, आँख का गलत इस्तेमाल करा। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। इरादा और इख्तियार इसके वास्ते दिया गया था हम इंसानों को। अल्लाह ताला ने जो इंसानों को ये जो इरादा और इख्तियार, कौन ऐसा होगा जिसको इरादे का मतलब नहीं समझता होगा? इरादा और इख्तियार हमारा कहाँ इस्तेमाल हो रहा? सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक हर एक बात में गौर करो। किसको इरादे का मतलब नहीं समझता हूँ? किसको इरादे का मतलब नहीं समझता हूँ कि इरादा किसको बोलते? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ज़रा सोच के देखो। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के सोच के देखो कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो बगैर इरादा बनाए के कर डाले पुण्य हो गया। बगैर इरादा बनाए से कौन सा काम हुआ दुनिया का? आखिरत के काम बगैर इरादा बनाए कैसे होंगे? अल्लाह के वास्ते गौर करो। इरादा बनाने की जो अल्लाह ताला ने हमको ये दी, वो इसके वास्ते दी कि हम हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए, गलत इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से समझिए। कुरान पाक में सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम नजल लहू ऐनैन, भला हमने तुझको दो आँखें नहीं दी, वो लिसानहु व शफ़तैन, और ज़ुबान और दो होठ नहीं दिए, वो हदैनहुन नजदैन, और हिदायत के दोनों रास्ते बताए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दोनों बताए। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दोनों रास्ते बताए, अच्छा बुरा। तमीज़ है इंसान को हर चीज़ की, लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने कौन सी राह चुनी? अच्छाई पर बुराई को चुना, बुराई की राह पर चला। दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के वास्ते आखिरत का नुकसान कर बैठा। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मौत पर ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी मौत से शुरू होने वाली है। अगर ये बातों को अगर करोड़ों बार भी सुना जाए तो कम है। आप लोग सोचते होंगे कि हर वीडियो में वोच एक बार 1000 दफ़ा सुनने के बाद भी अगर एक बात दिल पे असर कर गई ना तो बहुत बड़ी बात है वो। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मौत तक ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी मौत पे शुरू होने वाली है, मौत के बाद शुरू होने वाली है। हमने क्या कमाए? इरादे और इख्तियार का इस्तेमाल कहाँ करें? सोच के देखो। हर इंसान अपना हिसाब खुद हिसाब लेने के वास्ते खुद काफ़ी। हर इंसान
अपना हिसाब लेने के वास्ते खुद काफ़ी है कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। किससे बचेंगे, कैसे बचेंगे हम अल्लाह से? भाग भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम अल्लाह से भाग भाग के कहाँ जाएंगे? दुनिया में चारों तरफ नज़र दौड़ाओ, आसपास सब तरफ नज़र दौड़ाओ, क्या इकरार करते अल्लाह के सामने खड़े रह के? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहले तो बोलते हैं हमको सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। नमाज की हर रकात में फरमाते कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। उसके बाद फरमाते कि हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। डॉक्टर बनने के वास्ते डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, वकील बनने के वास्ते वकील की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, इंजीनियर बनने के वास्ते इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता, जो बनने का रहा उसके वास्ते हर चीज़ के वास्ते कोर्स करना पड़ता। दीनदार बनने के वास्ते दीन का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। और जो भी समझदार बच्चे, सुनने वाले समझने वाले बच्चे होंगे, उनको ये वीडियो सुनाओ ना। सोच के देखो, डॉक्टर बनने के वास्ते डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, वकील बनने के वास्ते वकील की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, इंजीनियर के वास्ते इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, दीनदार बनने के वास्ते दीन की पढ़ाई नहीं पढ़ना पड़ती। चला उन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। इनाम हासिल करने वालों के जैसे अमल करना पड़ेंगे ना, जिन्होंने इनाम हासिल कर दिए, पैगंबर, औलिया, सहाबी, ये जो बड़ी बड़े हस्ती है, अल्लाह के नेक बंदे, उनके जैसा बनने के वास्ते हर रकात में बोलते हैं हम ना अल्लाह ताला को, चला उन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। कोशिश क्या करते उसके वास्ते? इरादे को लगाते वाह, हमारे इरादे को और हमारे इख्तियार को वहाँ लगाते क्या? अल्लाह के वास्ते गौर करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो दूसरे तरफ सलाम फेरने का भरोसा नहीं। अगर अल्लाह ना करे अगर कल मौत आ जाती तो फिर ये बातें मेरे दिल में रह जाएंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे दूसरे तरफ सलाम फेरे तक का यकीन नहीं है। समझिए बात को। अगर कल मौत आ गई तो ये बात दिल में रह जाएंगी। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद कोशिश ना करे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हालात बद से बदतर होते जा रहे। है कोई जो सोचे और समझे? है कोई जो सोचे और समझे? है कोई उसके खिलाफ खड़े रहने वाला? है कोई बोलने वाला? है कोई करने वाला? इरादा बनाने की ताकत है, उस पर अमल करने की ताकत है, सब करने की ताकत है, पर हम सब कुछ रहते हुए भी अपाहिजे सब कुछ रहते हुए भी हमारी कौम अपाहिजे। ये अल्लाह रहम कर हमारे हाल पे। कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जहाँ तक भी हो सके इस वीडियो को फैलाइए, खुद भी इल्म दीन सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।